Hello, dear friends. Today we are going to discuss one short lecture for alternating current. I hope that this lecture will totally cover every aspect of this chapter and you will no need to read any other formula apart from this. So listen this lecture 2 or 3 times carefully, make it as a notes and repeat it weekly or 15 days one time so that you will have a command over alternating current. So let's start with the formula for alternating current. Dear friends, the first important formula when we consider alternating current, the alternating current has 4 main values we have to consider. Which are these values? Instantaneous value of current and voltage, peak value, RMS value and average value. So in alternating current we have to consider 4: instantaneous value, peak value, RMS and average value. Instantaneous value means value of current and voltage at any time, that is I is equal to I0 sin omega t, E is equal to E0 sin omega t plus phi, where phi is phase difference between EMF and voltage. Peak value means maximum value of current or voltage. So these are the peak values. Okay. RMS value means it is the effective value also. We call RMS value as effective value of EMF or voltage because we will not be able to measure current or voltage in the AC circuit with the help of normal galvanometer or voltmeter or ammeter, because galvanometer or voltmeter or ammeter measures average value of voltage or current, and in AC circuit average value over one complete cycle is 0, and that's why we use that particular property in which we use the dependence of current or voltage as a square of current or square of EMF. Okay, and that is the heating effect of electric current, and with the help of that we use RMS value as IRMS is equal to I0 upon root 2, ERMS is equal to E0 upon root 2, where actually I0 is peak value of AC, E0 is peak value of AC, and these are the effective values. And what about average value? As already we knew that average value of AC over one complete cycle is 0. So in AC circuit we will not be able to measure average value over one complete cycle. For that, the concept is that we measure average value of AC or voltage over half cycle. And what is that value? Average value of current over half cycle 2I0 upon pi, that is 0.637 of peak value. Average value of EMF 2E0 upon pi, that is 0.637 of peak value of current. Okay, that is we can say that average value of EMF of current is 63.7% of EMF or current. This is very important. Average value of EMF or current is 63.7 of the peak value of current or voltage. Okay, now what is formula for average value? This is already focus over this. Average value of any function of t is integral from 0 to t. 0 to t means one complete cycle. F of t dt upon integration of 0 to t dt. That is average value of a function over one complete cycle. 0 to t यानी one complete cycle हो जाता है. तो average value over one complete cycle is integration 0 to t f of t dt upon total time. You have to remember this formula. Average value of sin omega t, 2 omega t is 0, cos 2 omega t is 0, and average value of sin square omega t is 1 by 2. These are important formulae to memorize. Average value of sin 2 omega t is 0, cos 2 omega t is 0, sin square omega t is 1 by 2. So general formula for average value of current IAV is equal to, अब हम AC में क्या लेते हैं? हम AC में हाफ साइकिल लेते हैं. यहाँ पे हमने 0 to t कंप्लीट टाइम लिया है, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल बोल रहे हैं, पर हम अल्टरनेटिंग करंट में जो टाइम इंटरवल है वो 0 से t/2 लेंगे, क्योंकि हाफ साइकिल पे हम मेजर करने वाले हैं.
तो 0 to t/2 I dt अपॉन 0 to t/2 dt इंटीग्रेशन, इसका जनरल फॉर्मूला आता है 2I0 अपॉन पाई, और यही अगर EMF है तो 2E0 अपॉन पाई, ऑलरेडी हमने देखा है इधर। ठीक है, RMS वैल्यू क्या है I0 अपॉन √2, और ये 1 अपॉन √2 की वैल्यू क्या होती है 0.707, इसका मतलब 70.7% ऑफ I0, ERMS 70.7% ऑफ E0, ये हमें ध्यान में रखना है। कैसे, देखो मैं फिर से एक बार बताता हूं, हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इस तरह से लेना है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इस तरह से। ठीक है, इसमें I0 E0 क्या है, पीक वैल्यूज है। अब हम एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं करंट की, इंटीग्रेशन 0 to t/2 I dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t/2 dt। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो करंट होता है ये I0 sin ओमेगा t होता है, और इंटीग्रेशन 0 to t/2 dt। ठीक है, तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, I0 2I0 अपॉन पाई, इस तरह से आएगा, 2 अपॉन पाई यानी 0.637 I0, इस तरह से। सिमिलर फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF भी इसी तरह से आएगा 2E0 अपॉन पाई। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हमने I एवरेज लिखा, I एवरेज इस तरह से फॉर्मूला आएगा, E एवरेज इस तरह से फॉर्मूला आएगा, ये अलग चीज है। अब RMS वैल्यू का फॉर्मूला कैसे लेना है, E0 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0.707। इसका मतलब अगर हमें किसी ने पूछ लिया कि RMS वैल्यू ये पीक वैल्यू का कितना परसेंटेज है, तो 70.7%। उसी तरह से करंट का जो RMS वैल्यू है वो I0 अपॉन √2 है, वो भी इसी तरह से हम फॉर्मूले में लिखेंगे। सो RMS वैल्यू ऑफ करंट इज 77.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर हो गया? चलो, सो ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, उधर अच्छी तरह से ध्यान देना है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू अपॉन AC वैल्यू, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, सॉरी RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। AC सर्किट में ये एवरेज वैल्यू हम हाफ साइकिल के लिए लेते हैं, बाकी जगह हम कंप्लीट साइकिल यूज कर सकते हैं। तो फॉर्म फैक्टर इज RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, RMS वैल्यू का मतलब है V/√2, और एवरेज वैल्यू और हाफ साइकिल हमने EMF की निकाली है 2V0 अपॉन पाई, तो √2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, V0 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आएगा पाई अपॉन 2√2। AC सर्किट के लिए, साइनोसॉइडल वेव के लिए अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल कम टू बी 1.11। ये फॉर्म फैक्टर है। ध्यान देना, मैं फिर से एक बार बताता हूं, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या चीज है, ध्यान दो। फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। अब जैसे फॉर्म फैक्टर RMS वैल्यू करंट के लिए लेंगे तो IRMS, और ये हो गया एवरेज वैल्यू। उसी तरह से अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे तो VRMS अपॉन V एवरेज। अब इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इसको ध्यान देते हैं। IRMS क्या है, I0 अपॉन √2। I एवरेज क्या है हाफ साइकिल में, 2I0 अपॉन पाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा पाई अपॉन 2√2, क्योंकि I0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई अपॉन 2√2, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कम्स टू बी 1.11। सो फॉर्म फैक्टर फॉर साइनोसॉइडल वेव इज 1.11। आप इसको अच्छी तरह से लर्न करें, इस पर प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्लियर हो गया फॉर्म फैक्टर। सिमिलरली हम ERMS अपॉन E एवरेज लेंगे तो भी यही फॉर्मूला आएगा। तो ये किसके लिए है, ये साइनोसॉइडल वेव के लिए।
यानी एसी सर्किट के लिए फॉर्म फैक्टर। इसके नोट्स बना लेंगे आप अच्छी तरह से 2-3 बार रीड होने के बाद। अब पीक फैक्टर क्या है? पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, ध्यान देंगे। ये फॉर्म फैक्टर हो गया। अभी पीक फैक्टर, पीक फैक्टर देखो मैंने अभी फॉर्मूला बताया तुम्हें, क्या है? पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, चाहे करंट लो चाहे वोल्टेज लो। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ E0, आरएमएस वैल्यू क्या होता है? E0 बाय √2, E0 कैंसल, √2 ऊपर आ जाएगा। तो पीक वैल्यू क्या हो गई एसी सर्किट के लिए? √2। क्लियर हुआ? तो अभी तक मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, क्या क्या फॉर्मूले हमने देखे। हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ईएमएफ एंड वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर हो गया? हमने एवरेज वैल्यू भी देख लिया, ई एवरेज 2E0 अपॉन पाई, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। यहां तक कोई दिक्कत? इतने फॉर्मूले हमने अभी तक देख लिए हैं। उसके बाद हमने फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर देखा है। फॉर्म फैक्टर क्या चीज है? फॉर्म फैक्टर इज आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? दैट इज I0 अपॉन √2। व्हाट इज एवरेज वैल्यू? 2I0 अपॉन पाई। सो आंसर क्या आएगा इसका? पाई अपॉन 2√2। ये एसी सर्किट के लिए है, इसकी वैल्यू है 1.11 फॉर्म फैक्टर। उसके बाद हमने देखा पीक फैक्टर। पीक फैक्टर जो होता है उसे हम डिफाइन करते हैं पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू है I0, आरएमएस वैल्यू है I0 बाय √2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा पीक फैक्टर का? √2। √2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छी तरह से वीडियो को 2-3 बार पहले देखो, समझो। और फार्मूले ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप एटलीस्ट 5 टाइम्स ये फार्मूले लिखिए। अगर आप 5 टाइम्स से फार्मूले लिख कर लर्न करते हैं तो आपको कोई दिक्कत आगे आनी नहीं है। और हर 15 दिन में ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फैक्टर हो गया। एवरेज वैल्यू हमने देख ली, एवरेज वैल्यू sin 2ωt0 cos 2ωt0 sin स्क्वायर ωt 1/2। अब आगे, अब मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मीन स्क्वायर वोल्टेज क्या चीज है? मीन स्क्वायर वोल्टेज V बार स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वोल्टेज। V बार स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to t v स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t dt। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मीन स्क्वायर वोल्टेज क्या है? मीन स्क्वायर वोल्टेज इंटीग्रेशन 0 to t v स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t dt। फिर से एक बार, मीन स्क्वायर वोल्टेज इंटीग्रेशन 0 to t v स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t dt। अब ये जो मीन स्क्वायर वोल्टेज है, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसे हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। और ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ये किसका है? मीन स्क्वायर वोल्टेज का स्क्वायर रूट है। यानी ये जो फॉर्मूला है सिर्फ इसमें स्क्वायर रूट आप डाल दीजिए, काम हो गया रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का। ठीक है? अब यहाँ पे आइए, ये अलग फॉर्मूले थोड़े से हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, सपोज दैट हमारे पास करंट है I1 sin ωt प्लस I2 cos ωt। लेट वी हैव करंट I इज इक्वल टू I1 sin ωt प्लस I2 cos ωt।
V इज इक्वल टू V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी। देखो फॉर्मेट ध्यान में लो, करंट और वोल्टेज जब हम देख रहे हैं तो दोनों में फॉर्मूले सिमिलर टाइप के हैं। क्या है, I इक्वल्स टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, V इक्वल्स टू V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी, इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों केस में जो RMS वैल्यू आएगी फाइनली, उसका फॉर्मूला क्या है, I RMS अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलर फॉर्मूला फॉर वोल्टेज, V RMS इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखें, ये एक टाइप हो गया। अब इसमें दूसरे टाइप में हम क्या कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले में सिर्फ I0 करंट में और V0 वोल्टेज में ऐड करेंगे। फॉर्मूला वही है, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी। उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, करंट में I0 और वोल्टेज में V0। अब उस केस में हम RMS वैल्यू कैसे लेंगे करंट की, ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है जो हमने ऐड किया है, उसका स्क्वायर कर दो, I0 स्क्वायर, VRMS में V0 स्क्वायर, फॉर्मूला वही है, V0 स्क्वायर I0 स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इन दोनों केस में एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, पहले केस में अगर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे तो 0 आएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालेंगे तो वो भी 0 आ जाएगी पहले केस में। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हमेशा क्या लेंगे, जो हमने ऐड किया है वही, यानी I0। वोल्टेज अगर है तो V0, जो हमने ऐड किया है उसी को हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लेंगे। यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज 0 है, यहाँ पे जो हमने ऐड किया है वही एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज है। ये देखो, I1 साइन ओमेगा टी, I2 साइन 2 ओमेगा टी, I3 साइन 3 ओमेगा टी। उसी तरह से V इज इक्वल टू V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस साइन 2 ओमेगा टी प्लस V3 साइन 3 ओमेगा टी। अब इस फॉर्मूले में RMS करंट और वोल्टेज सिमिलर आएगा जो हमने पहले यूज किया है। कैसा, I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जो हमने ऐड किया है I0 ऐड किया है उसमें, देखो फॉर्मूले में यहाँ पे हमने I0 ऐड किया है तो वो यहाँ पे फॉर्मूले में लेना है, यहाँ पे V0 ऐड किया है वो फॉर्मूले में लेना है। इसमें भी जो ऐड किया है वही एवरेज वैल्यू है। हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो, मैं फिर से इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। हमारे पास क्या है, करंट है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास करंट है। इस केस में I RMS क्या लेना है, अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन, खत्म। इस केस में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 होगी, ये ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमने लिखा है यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना हुआ इस केस में, इस केस में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 है, सेम वोल्टेज भी उसी तरह से होगा। सिमिलर फॉर्मूले वोल्टेज के लिए लेंगे। अब अगर मैं इसी केस में फॉर्मूला यही रखता हूं, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, यही फॉर्मूला रखता हूं। इसमें सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने एक I0 ऐड कर दिया, तो यहां पे क्या फर्क पड़ेगा इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2 ये वैसे ही रहेगा, प्लस ये जो हमने यहाँ पे I0 ऐड किया है इसका स्क्वायर करना है। तो ये हो गई I RMS की वैल्यू इस केस में, और इसमें I एवरेज क्या लेना है, तो जो ऐड किया है वही उसका एवरेज है। सिमिलर फॉर्मूला फॉर वोल्टेज, V1 साइन ओमेगा टी, V2 साइन कॉस ओमेगा टी, इस तरह से। अब एक तीसरी केस लेते हैं जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी, इस तरह से मैंने फॉर्मूला लिया है। इस केस में I RMS कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, सिमिलर फॉर्मूला, सिमिलर है। और इसमें अगर मैं I0 ऐड कर दूं तो यहां पर भी उसी तरह से I0 स्क्वायर लेके इस फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे। तो सेम फॉर्मूला फॉर करंट एंड वोल्टेज, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए।
देखिए, समझिए। अब आगे, अब हमारे पास अलग अलग तरह के वेव फॉर्म्स होते हैं, जैसे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होता है, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेव होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है। तो ये अलग अलग केसेस हो सकता है इस पर कोई एमसीक्यू क्रिटिकल लेवल पे आ जाए, तो इसलिए हम ये ध्यान में लेंगे। अब देखो, साइनोसाइडल वेव जो है वो इस प्रकार की वेव है जो हम अल्टरनेटिंग करंट में देखते हैं। इसमें आरएमएस वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सॉरी, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हमें ऑलरेडी पता है, I0 अपॉन √2, 2I0 अपॉन पाई। अब इसमें फॉर्म फैक्टर हमने निकाल लिया पहले ही, 1.11 और √2। तो साइनोसॉइडल का ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी हमें जानकारी थी, ठीक है। स्क्वायर के लिए क्या है, देखो ध्यान दो, स्क्वायर के लिए इस तरह का स्क्वायर वेव है, इसमें आरएमएस वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल I0 होता है। यहाँ पे और यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे I0 अपॉन √2 है, यहाँ पे I0 है, और एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल यहाँ पर भी 0 है, क्योंकि ये प्लस और माइनस इक्वल है, इसलिए यहाँ पे एवरेज वैल्यू फिर से I0। तो इस केस में IRMS और I एवरेज सेम होता है। यहाँ पर भी हम हाफ साइकिल क्यों लेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल पे 0 हो रहा है, इसलिए हम एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे डिफाइन करेंगे। तो RMS वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल I0 है और एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल I0 है, दोनों सिमिलर है। तो फॉर्म फैक्टर क्या आएगा, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, यहाँ पर भी हाफ साइकिल लेंगे, ठीक है। तो RMS वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल I0 है, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल I0 है, तो I0 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर क्या आएगा, 1। पीक वैल्यू, पीक फैक्टर क्या आएगा, पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, पीक वैल्यू भी I0 है, RMS वैल्यू भी I0, तो पीक वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर ध्यान दे अच्छी तरह से, फॉर्म फैक्टर भी 1 है, पीक फैक्टर भी 1 है, कोई दिक्कत। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में देखिए, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हम AC टू DC जब करते हैं तो हाफ वेव हमें मिलती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में निगेटिव का कोई चांस नहीं है, बराबर है। तो अब IRMS जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में ओवर वन कंप्लीट साइकिल पीक वैल्यू अपॉन 2 आएगा। ये कहां से आया हमें उसमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए RMS वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल I0 अपॉन 2 है, यहाँ पे √2 नहीं है, I0 अपॉन 2 है। एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल यहाँ पे I0 अपॉन पाई और हाफ साइकिल 2I0 अपॉन पाई। ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, कहाँ से आए हमें उस पर दिमाग व्यर्थ नहीं करना है। I एवरेज I0 अपॉन पाई, कंप्लीट हाफ साइकिल 2I0 अपॉन पाई। हो सकता है आपको लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगे क्योंकि फॉर्मूले है, पर मैं ये लेक्चर आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका समय बचे। हम कंसिस्टेंट कमेंट्स करते ही रहते हैं, टाइम वेस्टेज करते ही रहते हैं, पर अभी एग्जाम के हिसाब से सीरियसनेस आना जरूरी है। 5 मई को आपकी नीट एग्जामिनेशन है, उसके पहले जेई के 2 अटेम्प्ट है, स्टेट बोर्ड लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है। मैं चाहता हूं कि आपको फिजिक्स में जो फियर है वो ना रहे। फिजिक्स के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं अगर आप उसको उठा के देख ले तो 80% क्वेश्चन से सीधे सीधे फॉर्मूले बेस होते हैं। अगर आपके फॉर्मूले लिप्स पर है तो आपको फिजिक्स का पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं जाएगा। 2 चीजें ध्यान में रखिए, फॉर्मूले आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हर चैप्टर पे कम से कम 200 MCQ ऑफ क्वालिटी के सॉल्व कीजिए, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेई हो, चाहे स्टेट बोर्ड लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। 200 MCQ अगर आप हर चैप्टर पे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का पेपर आए आपको सक्सेसफुली अटेम्प्ट करते आएगा। और इसीलिए मैं लेक्चर के दरमियान टाइम वेस्ट न करते हुए सीरियसनेस से ज़्यादा फोकस फॉर्मूले अच्छी तरह से कैसे हो इस पे कर रहा हूँ। इसलिए आपको लेक्चर थोड़ा बोरिंग भी लगे तो आप वो बोरिंग हटाइए, क्योंकि अभी बोर होना, मजा आना, हम मजा आने के लिए नहीं कर रहे कुछ भी, हम अभी पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। IRMS ओवर वन कंप्लीट साइकिल कितना है, I0 अपॉन 2, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ले रहे हैं।
एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल आई जीरो अपॉन पाई, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल 2 आई जीरो अपॉन पाई। एसी सर्किट में या इस तरह की सर्किट में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल जीरो होता है, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव करके एक साइकिल बनती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल ऐसे निगेटिव है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ओवर वन कंप्लीट साइकिल जीरो आने का कोई चांस नहीं है। सो कंप्लीट साइकिल में ये फॉर्मूला है, हाफ साइकिल में ये फॉर्मूला है, तो फॉर्म फैक्टर बदल जाएगा। वहां पे फॉर्म फैक्टर अलग है, यहाँ पे फॉर्म फैक्टर क्या आएगा, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। यहाँ पे आरएमएस वैल्यू क्या है, देखो आई जीरो अपॉन टू करंट की, और एवरेज वैल्यू हमने इस तरह जो फॉर्म फैक्टर निकाला इधर अल्टरनेटिंग करंट में, हमने वो एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल लेके फॉर्म फैक्टर निकाला है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल लेना है हमें, तो उसका फॉर्मूला है आई जीरो अपॉन पाई, और वो अगर वैल्यू लेंगे तो पाई बाय 2 यानी 1.57 ये हो गया फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। सिमिलरली आप इधर ध्यान दीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आरएमएस वैल्यू जो है कंप्लीट साइकिल पे आई जीरो अपॉन रूट टू है, एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल पे 2 आई जीरो अपॉन पाई है। यहाँ पे हाफ साइकिल लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाफ साइकिल नहीं है, कंप्लीट साइकिल है, पूरा साइकिल रेक्टिफाई हुआ है, तो आरएमएस वैल्यू आई जीरो अपॉन रूट टू ही रहेगा, एवरेज वैल्यू 2 आई जीरो अपॉन पाई रहेगा, फॉर्म फैक्टर बदल जाएगा, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पर भी फॉर्म फैक्टर 1.11, पीक फैक्टर यहाँ पे भी रूट टू, इस तरह से आएगा। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। क्लियर हो गया? चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं फिर से अभी मेन फॉर्मूले पे आता हूँ अल्टरनेटिंग करंट के। शुरुआत से हम देखते हैं, आप अच्छी तरह से इसको समझो। सॉरी, इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई जीरो, सॉरी आई इक्वल्स टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी ई इक्वल्स टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया इंस्टंटेनियस वैल्यू, आई जीरो ई जीरो पीक वैल्यू, आई आर एम एस आई जीरो अपॉन रूट टू ई आर एम एस ई जीरो अपॉन रूट टू, ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए चल रहा है। आई एवरेज एसी के लिए 2 आई जीरो अपॉन पाई, दैट इज 0.637 आई जीरो, अगर यहाँ पे लेंगे तो 0.707 आई जीरो। ई एवरेज सेम फॉर्मूला, (0.637 ई जीरो, ठीक है। फॉर्म फैक्टर फॉर एसी आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू और हाफ साइकिल, आई आरएमएस इस तरह से होता है, और एवरेज वैल्यू 2 आई जीरो अपॉन पाई, so it is pi upon 2 root 2 and it comes to be 1.11 for AC सर्किट। पीक फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, यहाँ पे पीक वैल्यू आई जीरो है, आरएमएस वैल्यू आई जीरो अपॉन रूट टू है, तो आंसर क्या आएगा, ये हो गया एसी सर्किट के लिए। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब हम जाते हैं पावर की तरफ, या फिर यहाँ तक आपको कोई परेशानी है देख लो, सारे फॉर्मूले हमने देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सपोज दैट एसी सर्किट जब हम कंसीडर करते हैं, एसी सर्किट में दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, एक तो रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस। अब उसमें हम जाते हैं एसी विथ आर, यानी एसी विथ रेजिस्टेंस। आपको डायग्राम अच्छी तरह से पता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये एसी का सिंबल है, रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई जीरो साइन ओमेगा टी है, तो ईएमएफ भी उसी तरह से आएगा।
इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी कंसीडर एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इज जीरो। फेज डिफरेंस जीरो, इसका मतलब क्या है कि फाई यहाँ पे जीरो है। ध्यान देना अच्छी तरह से, एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस में करंट और ईएमएफ जो है, इन दोनों का जो फेज होता है वो क्या होता है, इन दोनों का फेज सेम होता है। इसका मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ जीरो होता है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और इसी के लिए जब हम इसकी वेक्टर डायग्राम निकालेंगे एसी सर्किट विथ आर की, तो हमें इस तरह से डायग्राम मिलेगी। ये हो गया तुम्हारा V0 या E0 और ये हो गया तुम्हारा I0। बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार वेक्टर डायग्राम निकालता हूँ, ध्यान दो अच्छी तरह से। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम भी इसको बोल सकते हैं, E0 I0, पीक वैल्यू ऑफ EMF, पीक वैल्यू ऑफ करंट, दोनों एक ही लाइन में, इसका मतलब दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है। और अगर हम इसकी फेजर ग्राफ निकालेंगे तो ध्यान दो, अगर ये EMF के लिए ग्राफ आया, दिस इज फॉर EMF, तो इस तरह का ग्राफ आएगा करंट के लिए। यानी जब EMF मैक्सिमम हो रहा है तो करंट भी मैक्सिमम हो रहा है, EMF मिनिमम हो रहा है तो करंट भी मिनिमम हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों में फेज डिफरेंस जीरो है। तो एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस जीरो है, करंट और EMF सेम फेज में है। ये उसकी फेजर डायग्राम है, आपको अच्छी तरह से ये ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर जो होता है, ध्यान देना है, पावर फैक्टर cos फाई होता है। यहाँ पे फाई जीरो है, तो पावर फैक्टर कितना है एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस का? 1। ये ध्यान में रखना है, ये नीट का, जेई का, स्टेट बोर्ड के सीईटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर फैक्टर फॉर एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस कितना होता है? 1। आप अगर ये अच्छी तरह से कर लेते तो इसके बाहर कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? अगर पावर निकालनी है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ई। आई और ई का ये प्रोडक्ट है इंस्टेंटेनियस पावर, ये ध्यान में रखना है। और इंस्टेंटेनियस पावर एसी सर्किट विथ आर में आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस। कॉस फाई हम जनरली लेते हैं, यहाँ पे फाई जीरो है तो कॉस फाई 1, तो आई आर एम एस ई आर एम एस, दिस इज फॉर्मूला फॉर पावर, एवरेज पावर। Instantaneous power is the product of instantaneous current and instantaneous voltage, और average power IRMS ERMS cos phi यहाँ पे 1 होता है, IRMS ERMS, इसके बाहर कुछ नहीं। AC सर्किट विथ आर। अब हम देखते हैं AC सर्किट विथ इंडक्टेंस। AC विथ इंडक्टेंस